Afternoon, students. I am Abhay again with you. I am just starting with your first section of economic geology. The second topic of this first section is transgenic animal. So here today we'll discuss about transgenic animals. And this topic or this lecture is of Tuesday, I think, and that is yesterday. That is on 6th of April. And the lecture for today is for Wednesday. I'll post it later on in the evening. So here the transgenic animals, these are also animals. Another name of animals are called GMOs, genetically modified organisms. Modification is the manipulation or changing the existing genome either by adding the foreign or by deleting the undesirable genes from the genome. So what are transgenic animals? Transgenic animal is one whose genome has been alter मतलब change करना by transfer of gene and or gene from the another species or breed. We just make the gene sequence accordingly as per our requirement or desire. So this type of alteration is this type of alteration within the animals are there are called as transgenic animals. You are seeing there is a photo showing two transgenic mice. Both are placed side of the plain mouse. We just do the modification by altering their genes, and this was done by the Ingrid Mon et al. In BMC Cancer in 2012. Then what is the importance in transgenic animals are mainly used in laboratories. हमें लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं एज अ मॉडल्स इन बायोमेडिकल रिसर्च. जितनी भी हमारी मेडिकल रिसर्च हो रही है, बायोमेडिकल मींस लिविंग बींग्स के ऊपर, और जो भी हम ड्रग्स उनको अप्लाई बना रहे हैं जस्ट टू क्योर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ these transgenic animals just to check or just to approve our drug whether they are applicable or good, or whether they are good for human consumption or not. So for all type of biomedical researches, these transgenic animal are regarded as models. Over 95% of those used in genetically modified rodents, predominantly mice. So सबसे ज़्यादा हम रिसर्च किसको यूज़ करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स में माइस को यूज़ करते हैं. बेटा ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट एक हमारे पास टूल्स हैं जो जिसके थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर. ठीक है, और हम जीन फंक्शनिंग को समझ सकते हैं कि हाउ जीन आर फंक्शन इन अकॉर्डेंस टू द डिजीज़ susceptibility, progression and to determine responses to the therapeutic intervention. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी ये जीन सीक्वेंस हैं उनका डिज़ीज़ की ससेप्टेबिलिटी पे क्या असर है, प्रोग्रेस पे क्या असर है, और उनके और थेराप्यूटिक इंटरवेंशन पे क्या उनके रिस्पॉन्सेज हैं. सो ये ट्रांसजेनिक animals are very much important in the field of searching human diseases. Okay, then mice have also been genetically modified to naturally produce human antibodies. Just you know very, I think for the vaccine we just prepare antigens. Whenever we ingest antibodies within the human, it will produce antibodies against it.
or if we ingest antibodies, it will produce antigens. So accordingly, genetically modified mice are used to produce human antibodies, just to produce human antibodies, and these antibodies are used as a therapeutic or as a medicine to cure different type of diseases within the human beings. 7 out of 11 monoclonal antibody drugs, जो कहते हैं हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ड्रग्स हैं 11, उनमें से जो 7 हैं वो अप्रूव्ड किए गए हैं एफडीए ने अप्रूव किए हैं 2006 से लेकर 2011। और वो सारे के सारे ड्रग्स हमें कहाँ से हमने बनाए थे? ट्रांसजेनिक माइस से। कहाँ से बनाए थे? ट्रांसजेनिक माइस से। क्योंकि हमने क्या किया था, जो हमारे एंटीजन प्रेजेंट थे वो ह्यूमन से लेके माइस में इंजेस्ट करते थे, तो माइस उसके अगेंस्ट क्या बनाता था? एंटीबॉडीज़ बनाता था, और वो एंटीबॉडीज़ को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करने के बाद उसको हम एज अ मेडिसिन और एज अ ड्रग हम उसको यूज़ करते हैं जस्ट टू क्योर डिजीज़ विद इन द ह्यूमन बींग्स। Then transgenic farm animals are also being explored as a mean to produce large quantity of complex human protein for the treatment of human diseases. So even not only mice, other animals are also being used to produce large quantity of complex human proteins that are responsible for the treatment of human diseases. इंसानों की बीमारियों को ठीक करने के लिए हमने बहुत सारे और एनिमल्स को यूज़ किया है। क्योंकि वो क्या करते थे, ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करते थे जिससे क्या होता था कि कुछ बीमारी हमारी ठीक होती थी। तो ऐसी जो हमारे थेराप्यूटिक मीन्स जो ऐसे ड्रग जो हमारे डिजीज़ को, इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्पफुल थे। तो और ऐसे थेराप्यूटिक प्रोटीन्स आर करंटली प्रोड्यूस इन मैमेलियन सेल बेस्ड रिएक्टर्स। तो इनको हम आजकल सेल बेस्ड रिएक्टर्स में भी के थ्रू भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कहते अगर हम इनको सेल बेस्ड रिएक्टर्स की हेल्प से करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायो रिएक्टर्स इन द इंडस्ट्रीज, बट ये जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि इन 2008 में द बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर वन थेराप्यूटिक प्रोटीन वर एस्टिमेटेड कॉस्ट ओवर $500 मिलियंस। तो कहते हैं अगर हम इंडस्ट्रियली इन सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। सो द चीपर ऑप्शन वुड बी टू डेवलप द मीन टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स इन द मिल्क, ब्लड और एग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो द सबसे सस्ता तरीका क्या था कि हम जो रिकम्बिनेंट एनिमल्स हैं उनके थ्रू हम उनके प्रोटीन्स को हम प्रोड्यूस करवाएं, प्रोटीन्स को प्रिपेयर करें, उनके मिल्क के से आइसोलेट कर सकते हैं उनको। ट्रांसजेनिक एनिमल्स अपने मिल्क में वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, ब्लड में कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। इवन एग ऑल्सो, एग्स ऑफ ए ट्रांसजेनिक एनिमल ऑल्सो आर वन ऑफ द ऑप्शन टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। सो इसमें इस एरिया में कॉन्टीन्यूसली प्रोग्रेस होती रही, ठीक है। और वो जो प्रोग्रेस थी हैज़ बीन स्लो टू डेट, वो थोड़ी स्लो थी। बट ओनली 2 बायोमेडिकल प्रोडक्ट हैव सो फार रिसीव्ड रेगुलरली अप्रूवल। तो कहते इसकी जो हमने सोचा था कि कुछ हमारे रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मिल्क, ब्लड और एग के थ्रू प्रोड्यूस करवा लें, उसमें हुई। बट प्रोग्रेस हमें सक्सेसफुल हम कास में रहे ओनली 2 बायोमेडिकल प्रोडक्ट में। फर्स्ट कौन सा था? ह्यूमन एंटी थ्रोम्बिन। थर्ड, अ थेराप्यूटिक प्रोटीन प्रोड्यूस इन द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक गोट। और ये हमने जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड जो हमें प्रोटीन था वो कहाँ से मिला? ट्रांसजेनिक गॉट से मिला, जिसको किसके लिए यूज़ कर सकते थे? जो क्लॉटिंग थी विद इन द पेशेंट उसको ख़त्म करने के लिए, टू प्रिवेंट क्लॉट्स इन पेशेंट्स विद हेरिडिटरी एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी।
रिसीविंग सर्जरी और अंडरगोइंग चाइल्ड बर्थ। तो जो हमारी एंटी जो क्लॉट्स थे पेशेंट में बनने की जो बीमारी थी उसको ख़त्म करना था। तो हमें क्या हुआ, जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड प्रोटीन था वो हमें किससे मिला, ट्रांसजेनिक गॉड से। एक तो इसमें हमें सक्सेसफुल रहे हम साइंटिस्ट, और एक रिलेटिवली स्मॉल हर्ड्स ऑफ गॉड अबाउट 30-80 कैन सप्लाई एनफ ह्यूमन एंटी थ्रोम्बिन फॉर ऑल द यूरोप। कहते अगर हम सारे यूरोप के लिए हमें वो चाहिए थी, तो कहते एक सिंपल नियर अबाउट 80 गॉड्स को अगर हम ट्रांसजेनिक गॉड्स के थ्रू अगर हम प्रोटीन एंटी थ्रोम्बिन को प्रोड्यूस करवाते थे, तो हमें पूरे यूरोप के लिए उनसे क्या मिलता रहा, सफिशेंट अमाउंट में एंटी थ्रोम्बिन मिल गया। और सेकंड प्रोडक्ट क्या था, द मेन इज द रिकम्बिनेंट ह्यूमन C12 एस्टीरेज इनहिबिटर। This is the enzyme that we get from the rabbit, transgenic rabbits. They just produce this enzyme C12 esterase inhibitor within their milk. This is used to treat hereditary angioedema, a rare genetic disorder. This one is the angioedema is the hereditary disorder which causes blood vessels in the blood to expand and cause skin swelling. So just to cure this type of disease, that is in the disease was the swelling of skin, okay, or expansion of blood within the vessel due to which the skin gets swelled up. So just to cure this disease, this transgenic rabbit was used to produce enzyme which inhibit or which cure this type of disease. I think you got, these were the two main products what we get. First one is the antithrombin, third, and second one is the C12 एस्टीरेज इनहिबिटर। तो हमें दो प्रोडक्ट मिले थे ट्रांसजेनिक, हमें ट्रांसजेनिक गॉड से एंटी थ्रोम्बिन मिला जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता था, और ट्रांसजेनिक रैबिट से हमें क्या मिला, C12 एस्टीरेज इनहिबिटर जो क्या करता था, स्वेलिंग ऑफ स्किन को रोकता था बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और देन डिस्कवरी द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक इज रिलियंट ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। कहते हैं बहुत सारे कंपोनेंट थे, फैक्टर थे, बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। One of the first thing is needed to generate transgenic animal is the ability to transfer embryos. सबसे मेन फर्स्ट थिंग जो थी needed to generate transgenic animal is the ability to transfer embryos. तो हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स की से क्या ज़रूरत थी कि हमने क्या करना था, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र करना था। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी ट्रांसजेनिक एनिमल की। तो सबसे पहले जो हमारा सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हुआ था एम्ब्रियो, वो किसने अचीव किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था, वॉल्टर हीप ने एंगोरा रैबिट पे इन 1891 पे। तो another important component is the ability to manipulate the embryo. So transgenic animals are also responsible for the manipulation of embryos. In vitro manipulation, in vitro means within the lab, in vivo होता है in the field, in vitro within the lab. हमने लैब में एम्ब्रियो को माइस के embryos in mice was first reported in 1940 using culture system. तो हमने लैब में एम्ब्रियोज़ को मैनिपुलेट किया, चेंज किया कल्चर सिस्टम की हेल्प से। व्हाट इज़ ऑल्सो विटल इज़ द एबिलिटी टू मैनिपुलेट एग्स। तो इससे हमें क्या मिला, हमने एग्स को भी मैनिपुलेट किया। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, जो हमारे एफर्ट्स थे साइंटिस्ट रैफ ब्रिस्टनर के अटैच टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, who in 1963 advised a reliable
ए रिलायबल सिस्टम टू कल्चर एग। तो बेटा उसने सबसे पहले एग की कल्चरिंग की थी on that of Taeping Lin, based at California School of Medicine, who in 1966 outlined the technique of microinjection. So this one was the most important technique of transferring of embryos from the donor to the recipient. So this was first done by the scientist in 1966. This technique is known as microinject fertilized mouse eggs, which enable to accurate insertion of foreign DNA. सो हमने सबसे पहले टेक्निक थी माइक्रो इंजेक्ट फर्टिलाइज्ड माउस एग, जहाँ पे हमारी फॉरेन डीएनए की इंसर्शन सक्सेसफुल हुई थी। तो फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल वाज रिपोर्टेड इन 1974। वो हमारे एक वीरोलॉजिस्ट थे रूडोफिल जेंस्क। उसके बाद अदर कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो दे डेमोस्ट्रेट दैट द फिजिबिलिटी ऑफ मॉडिफाइंग जीन्स इन द माइस बाय इंजेक्टिंग द SV40 वायरस इनटू द अर्ली स्टेज ऑफ माउस एम्ब्रियो। कहते हैं हमने क्या किया था, SV40 वायरस को इंजेक्ट कर दिया था एम्ब्रियो के बीच में माइस के। तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिला था, तो जो माइस थे उसके बीच में मॉडिफाइड जीन आ गए सारे टिश्यूज़ के बीच में। और इन 1976 हमें क्या पता लगा था कि जो वायरस ऑल्सो भी पास्ड ऑन टू ऑफस्प्रिंग बाय इन्फेक्टिंग एन एम्ब्रियोज। और कहते हैं वायरस जो था वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हुआ। सो दीज वर द डिफरेंट वर्क डन बाय द साइंटिस्ट। नाउ वी केम टू आर such work led the basis of the creation of transgenic mice genetically modified to inherit particular form of cancer। कहते हैं इस ऐसे काम से हमें ट्रांसजेनिक एनिमल को हमारे पास बने और उन्होंने उनको मॉडिफाई किया, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर्स को इनहेरिट करने के लिए। तो इन माइस को हमने लेबॉर्ट्री में एज ए लेबॉर्ट्री टूल यूज़ किया टू अंडरस्टैंड वन सेट एंड प्रोग्रेस ऑफ कैंसर। हमने किसी कैंसर की स्टडी को समझने के लिए इनको बहुत अच्छे से यूज़ किया माइस को, ट्रांसजेनिक माइस को। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ ऐसे माइस को, ये एक मॉडल बन गए, ठीक है। और बिल्कुल ये एक तरह से मिमिक कैसे करते थे ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बॉडी की तरह ये नकल करते थे। तो इसी वजह से हमने इन माइस को, ट्रांसजेनिक माइस को एक अपना मॉडल मान लिया जस्ट टू डू आर रिसर्च ओवर थेरेप्यूटिक ड्रग्स और एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, just to check how they are working if we apply over the human beings. So application transgenic animals are most commonly, and that is mice, as we discussed earlier, had a foreign DNA deliberately insert into the genome। हमने एक माइस के बीच में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया। तो जब इसके बीच में इंसर्ट हुआ माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से, हमने फॉरेन डीएनए को बीच में डाला इनटू द प्रो न्यूक्लियर फर्टिलाइज्ड एग, तो विच इज सब्सिक्वेंटली इम्प्लांटेड इनटू द ओविडक्ट ऑफ द सूडो प्रेग्नेंट सूरगॉट मदर। कहते हैं हमने वो फर्टिलाइज्ड एग को में फ़ॉरेन डीएनए डाल के उसको फलोपियन ट्यूब में रख दिया सूरगॉट मदर की। तो उसके हमें क्या हुआ, जो रिसिपिएंट एनिमल था उसने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑफस्प्रिंग को बर्थ दिया। और जो बर्थ देने के बाद हमारे पास प्रोजेनी आई, उसको हमने बाकी ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग टू एस्टेब्लिश, बाकी हमने और ट्रांसजेनिक लाइन को क्रिएट किया सेम वे के साथ। तो इससे हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए इस फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने पे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, जो प्रोजेनी थी उसमें infected an embryo with virus that carry DNA of interest. Thus, finally, method is commonly used to manipulate single gene. In most cases, this involve removing or knocking out the target gene, and the result is what known as knockout animals.
तो बेटा हमने क्या किया, तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड, हमने ट्रांसजेनिक का नाम कैसे क्रिएट किया, इंसर्टिंग डीएनए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, ठीक है, एम्ब्रियो माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से एम्ब्रियो के बीच में, जब एम्ब्रियो के बीच में उन्हें डाल दिया, उसके बीच 5 और 6 दिन के बाद उसको फर्टिलाइज़ किया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इन्फेक्टेड एन एम्ब्रियो विद वायरसेस दैट कैरिंग द डीएनए इंसर्ट, जिस वायरस की हेल्प से हमने डीएनए को इंसर्ट किया था, तो वो उसके बीच में मैनिपुलेट हो गया, इंसर्ट हो गया। और ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया किसी भी जीन को चेंज करने के लिए, और इसको हम बोलते थे रिमूविंग और नॉकिंग आउट, कि हमने क्या करना है, डिज़ायरेबल को डाल देना है, अनडिज़ायरेबल को बाहर निकाल देना है। सो 1980s में ट्रांसजेनिक माइस का हमारा की मॉडल बन गया डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारा बहुत अच्छी चॉइस थी। एक के हमें एनालिसिस नहीं होता था जीनोम सीक्वेंस का, बट सिमिलर टू ह्यूमंस, ये ह्यूमंस की तरह मिमिक करते थे। डायरेक्टली ह्यूमंस को देने की बजाय पहले हम माइस पे टेस्ट करते हैं कोई भी ड्रग, कोई भी चीज़, और उससे हमें करता है हमारी जो थेरापिटिकल रिसर्च है वो बढ़िया हो जाती है। सो ट्रांसजेनिक रोडेंट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। सो इससे हमें क्या पता लगा, जो ट्रांसजेनिक रोडेंट्स थे जस्ट लाइक माइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ड्रग डिस्कवरी में, और डेवलपमेंट इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया रोल था। सो ट्रांसजेनिक माइस आर आल्सो बीन यूज्ड as model, for example, to study obesity, heart disease, diabetes, arthritis, substances abuse, and anxiety, then aging, Alzheimer's disease, and Parkinson's disease. They are also used to study different form of cancers. So nowadays the transgenic animals are very involved in curing different type of disease, or so we can say the creation of transgenic animals are greatly involving in reduction of various diseases with this manipulation. This is all about the, you can see over here, and the most important is the date is the 5 July 1966, when the Dolly sheep, the first clone mammal, was born. The birth of first sheep cloned with human gene in July 1997. So there are so many examples of transgenic animals. This is all about the transgenic animals. Others, the notes I'll send you in the Google Classrooms. Okay, all the best. Bye.